بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ KPK میں کچھ مسائل چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ اکثر بند رہتی ہیں. جب بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں تو کچھ ویڈیو تو بالکل اپلوڈ ہی نہیں ہو پاتی اور اس کو ہم وقت گزرنے کے ساتھ نکارہ سمجھ کے ضائع کر لیتے ہیں. 3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی، وہ آج اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ لوگوں نے دیکھ لی. ابھی آج دوبارہ مجھے ویڈیو بنانے کی کیوں ضرورت پڑی اور ابھی یہ ویڈیو کب تک اپلوڈ ہوتی ہیں یہ رب بہتر جانتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ ہی دیر میں اس کو اپلوڈ پہ لگا دوں. آپ کو میں بتانا کیا چاہتا ہوں، اس میں راجہ ریاض نے کچھ حقیقت بیان کی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اور نوسرے بازوں کی حقیقت جو ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ چکی ہیں اور آپ لوگوں کے پیسے کے ریکوری کے جو امکانات ہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. الحیات والوں کے ساتھ جو آگے ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو ہوگی. اور جو کچھ اور کمپنیاں MS گروپ اور گلوبل بزنس وغیرہ یہ جو لوٹ مار میں سرگرم ہو چکے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ حقائق بتاؤں گا. لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان سرے بازوں سے وہ بچ سکے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ میرے ساتھ یہ ہوا، میں ویڈیو دیکھتا ہوں، میں یوٹیوب کو استعمال کرتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں، میں فیس بک پہ ہوں، لیکن مجھے B4U سے پہلے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کیسے لوٹتے ہیں اور ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. ویسے اس سے پہلے بھی یہ ایک عرصے سے زیادہ وقت سے لوٹ مار کر رہے تھے، 15-16 سال 10 سال پہلے سے وہ لوٹ مار کر رہے تھے. لیکن ہم نے صرف ڈبل شاہ کی کہانی سنی تھی، ادھر ہزاروں سینکڑوں ڈبل شاہ ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. لیکن جیسے بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو B4U ہے یہ بھی ایک فراڈ کمپنی تھی، سیکیورٹینس جو بن رہی ہے وہ بھی فراڈ کمپنی ہے، کیشورت بھی فرنڈ ہے، اس سے پہلے بھی جتنے بھی تھی وہ بھی فراڈ تھی اور آگے بھی جو آنے والی ہیں تو وہ فراڈ ہی ہوگا. کیونکہ نوسرے بازوں کا کام نوسرے بازی کرنا ہوتا ہے، وہ پک دامن نہیں ہوتے، وہ اچھا کاروبار نہیں کرتا ہے. اس کا مین مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کو لوٹنا. تو اس بارے میں جو راجہ ریاض نے باتیں کی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور میں تفصیلی آپ کو آگاہ کروں گا. لیکن یہ جو نوسرے باز آپ کو بولتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو خود لوٹ گئے، ان کی کہانی اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اندر کی کہانی آپ کو میں آگے سناتا ہوں. لیکن سب سے پہلے آتے ہیں الحیات کی طرف. الحیات کا جو CEO ہے جنزے والا، اس نے کس کو استعمال کیا؟ آپ کو لوٹنے کے لیے اس نے کس کو استعمال کیا؟ ابھی آپ اپنے پیسے لینا چاہتے ہیں لیکن جتنے بھی نئے انویسٹر ہیں یا پرانے انویسٹروں کو دوبارہ لوٹا گیا ہے ان کو وہ لوگ اداروں سے کیسے روک رہے ہیں؟ پہلے بھی آپ لوگوں کا تجربہ ہو چکا ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے تھے کہ آپ لوگ نیب میں جائیں، آپ لوگ پولیس میں جائیں، آپ لوگ FIA میں جائیں، آپ لوگ کیس کریں، آپ اس کا گریبان پکڑے، آپ لوگ اس کے اوپر ہاتھ ڈالے، آپ نے لیڈرز کے اوپر FIR کرے تو پھر یہ آپ لوگوں کو روکتے تھے. وہ کون تھے؟ وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ ادھر ٹولیوں کے صورت میں، گروپوں کی صورت میں، کمیٹیوں کی صورت میں ہر وقت موجود رہتے ہیں. پھر کمپنی جو بھی ہو اس کا اپنا ایک نوسرے بازوں کا گروہ ہوتا ہے اور وہ جو CEO ہے اس سے ظالم لوگ پیسے لے کے آپ لوگوں کو اپنے حقوق سے دستبردار کرنے کے لیے ریڈی کرتا ہے. کہ آپ ان کے اوپر بات ہی نہ کریں، آپ اس بات کو چھوڑیں. کبھی کسی کی ریکوری نہیں ہوئی، ان ظالموں کو کوئی یہ پوچھے کہ اگر کبھی ریکوری نہیں ہوئی تو آپ بار بار لوگوں کی انویسٹمنٹ کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی ریکوری نہیں ہوئی، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چور تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. تو جو آگے کے چور ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں، وہ ڈاکو وہی کام کر رہے ہیں، وہ فراڈیا وہی کام کر رہے ہیں. پھر آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ ادھر پیسہ لگاؤ. ابھی الحیات والوں کو جو بولتے ہیں گلشن حیات میں لگاؤ، فلانے میں لگاؤ، ڈنگانے میں لگاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دا وے از ویری سمپل. اگر آپ لوگ اس پہ جانا چاہیں تو منی ریٹرن کے لیے بہت سے طریقے ہیں اگر آپ دینا چاہیں، لیکن آپ دینا نہیں چاہتے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کروڑوں اربوں روپے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ دینے کے لیے نہیں ہے. وہ جو لوگ آپ کے گریبان کو پکڑتے ہیں، جو لوگ آپ کا جینا حرام کرتے ہیں، جو کو آپ لوگوں کو عدالتوں میں کہتے ہیں، اس کو دیتے ہیں. جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ پیسے نہیں دیتے. ہمارے پاس کتنے لڑکیوں کے، بیواؤں کے، عورتوں کے، بہنیں کے، بھائیوں کے فون آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں الحیات نے لوٹ لیا، ہمیں اسمارٹ گروپ والوں نے ہمیں دھوکہ دیا،
फलाने ने हमें धोखा दिया, ढिंगाने ने हमें धोखा दिया, ये एक सिलसिला चालू है, ये रुकता क्यों नहीं है? उसके ऊपर हम बात करेंगे और वक्तन फवक्तन हुकूमत की आंखें खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हुकूमत ये कर रही है, जो भी मुल्क में होते हैं वो सिर्फ दफ़ा 144 और लगा के और नेट बंद के इस पे गुजारा करती हैं, बाकी तो उनका कोई काम ही नहीं है, अपने ड्यूटियाँ तो वो करते नहीं हैं। नौसरेबाज जो हैं वो बार बार लूट करते हैं, वो मैदान में आते ही नहीं है। जिनकी हम निशानदेही करते हैं उनको बंद करने में भी उनको सालों लग जाते हैं, फिर वो करोड़ों लोगों को लूट चुके होते हैं। लेकिन हम इस यूट्यूब चैनल को इन ज़ालिमों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहेंगे, ये आप लोगों के साथ हमारा कमिटमेंट है। और एक और बात, मेरे पीछे जो कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये पैसे कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो अलग गवाह है कि आज तक तो मुझे यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं मिला है। लेकिन आप लोग दुआ करें कि मेरी अर्निंग शुरू हो जाए, मुझे पैसे मिले तो मैं इन लोगों का जीना हराम कर दूंगा। जितने भी पैसे मेरे हाथ में आएंगे इनके पीछे लगाऊंगा, इनके ये जो फ्रॉड है इनको बंद करने के लिए लगाऊंगा, ये जो फ्रॉड है इनको जेल भेजने के लिए लगाऊंगा। हमारी दुआ है कि कुछ शुरू हो जाए, क्योंकि हम जेब से अगर खर्च करते हैं तो अगर ऊपर की आमदनी यूट्यूब से मिलती है तो फिर तो वाह है हमारी, फिर तो हमें उन पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा तो अल्लाह पाक जो है रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करता है। तो मैं आप लोगों को पक्की बात बता रहा हूँ कि अगर मुझे मिलना शुरू हो गया तो फिर ये इन लोगों के लिए बहुत बुरा होगा जो लूट मार करते हैं। लेकिन अभी तक नहीं है, वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये हर कंपनी के पीछे बात करते हैं। जिस कंपनी के पीछे हमने बात की है उसने फ्रॉड किया है, जो भाग चुकी हैं, जो फ्रॉड कर चुकी हैं वो तो आपके सामने है, जो आगे करने वाली हैं वो भी हम आपको एडवांस में बता चुके हैं। लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता, आप लोगों के लालच जो है वो आपको ले डूबता है और इन नौसरेबाजों के ऊपर आप दोबारा यकीन कर लेते हैं। आपको इनके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। अभी भी हम अल हयात वालों को बता रहे हैं कि आप लोगों को इत्तेहाद की ज़रूरत है। आपको पैसे मिलेंगे, लाज़िम मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो इन ज़ालिमों की वजह से नहीं मिलेंगे, जो आपको अपने हकूक़ से दस्तबरदार करने की तरगीब देते हैं। आपको बोलते हैं कि किसी को नहीं मिला, आप अपना काम करो, दूसरे कंपनी में पैसे लगाओ। कभी भी किसी कंपनी में पैसे नहीं लगाने हैं। ये पैसे अगर आपको मिलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए कोशिश करें जितना कर सकते हैं। लेकिन जहांज़ेब आलम पर, सैफुर रहमान पर, अदम अमीन पर, ये जितने भी नौसरेबाज हैं, नवीद अख्तर है, किसी के ऊपर अपने इत्तेमाद नहीं करना। ये बात नोट कीजिएगा, मेरे ऊपर भी इत्तेमाद ना करें। मैं अगर आपको कहूँ कि फलानी कंपनी में पैसे लगाओ, आपने नहीं लगाने हैं तो नहीं लगाने हैं, बस यही बात है। आते हैं राजा रियाज ने जिन लोगों को एक्सपोज किया, तो राजा रियाज के ऊपर खुद भी सवाल ये निशान बनता है कि उसको भी तो पता था, वो क्यों कह रहे कि उसके साथ फ्रॉड हुआ। बहरहाल वो बोलते हैं कि नहीं था, वो रब बेहतर जानता है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन राजा रियाज ने जो बहुत अच्छा काम किया वो ये किया कि उसने अपने बंदों को जो किश्वर्त में लोगों से पैसे ले रहे थे उनके फ्री अकाउंट दिए जाने की उसने तस्दीक की। आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि वो बता रहे हैं कि इनको हज़ार के या इससे कम या ज़्यादा के फ्री अकाउंट मिले थे। तो सवाल तो ये बनता है कि इन लोगों को फ्री अकाउंट क्यों दिए गए, और इनको फ्री दिए गए तो दूसरे से 25% क्यों लिया गया? सवाल तो बनता है ना, और सवाल हम उठाएंगे। हम आपको बोलते हैं कि आप इन लीडरों के खिलाफ, जिसने आपको बताया कि किश्वर्त में पैसे जमा करो, उनके खिलाफ एक्शन ले, उनके ऊपर FIR करे, उनको घसीटे, उनसे उनके गिरबान पकड़ के अपने पैसों का तकाजा करे, उनके ऊपर हाथ डाले। आप बहुत मजबूत है लेकिन आप में हौसला नहीं है, आप डरते हैं, आप डरपोक हैं, आप लालची हैं। आप इन चीज़ों को बाहर फेंके और अपने हक के लिए निकले। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको अपना हक मिलेगा। B4U वालों को हक मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। बाकी रही क्लेम फार्म की बात, कि क्लेम फार्म अपने कैसे जमा करना है, तो आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि फवाद खान इसके ऊपर काम कर चुका है, वो ट्राई कर चुका है, और जो उन्होंने क्लेम फार्म ऑनलाइन जमा किए उसने कल पे वेरिफिकेशन के बारे में पूछा कि हो सकती है, नहीं हो सकती है, और हमारा क्लेम है उधर का नहीं है, तो उनको बताया गया कि आपका क्लेम सिस्टम में मौजूद है। तो आप लोगों को मैं ये यकीन से कहता हूँ कि ये जो वेबसाइट हैं वो लोग देखते हैं और उनके ऊपर काम भी करेंगे। थोड़ा स्लो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह पे यकीन रखें कि आपको पैसे मिलेंगे, और पैसे सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने
क्लेम फर्म जमा किया हुआ है या जिन्होंने केस किया हुआ है या जिनके पास कोई भी हुकूमत की तरफ से एक पेपर हाथ में आ चुका है कि आपके पैसे इतने इनके ऊपर है और अगर ये जायदाद इनकी नीलाम हो जाती है या इनके जो पकड़े गए पैसे हैं, जो फ्रीज पैसे हैं, उनको तकसीम करने का अमल शुरू हो गया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। बाकी आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई फ्री अकाउंट दे रहा है तो क्यों दे रहा है। आप अपने महल्ले के किसी दुकान में जाए, आपको कोई एक बिस्कुट का डब्बा फ्री नहीं देता। अगर आप उसको बताएंगे कि आप एक फ्री दे दे, फिर मैं 10 आदमियों को लाऊंगा, वो एक एक डब्बा खरीदेंगे, वो नहीं देगा। आप घी और तेल वाले दुकान के पास जाए कि मुझे एक टीन दे दे, फिर मैं आपके पास 10, 20, 15 कस्टमर बेचता हूँ, आपको एक टीन घी का भी नहीं देगा। और ये तो बहुत इम्पॉसिबल है कि वो हर टीन पे आपको बोनस देगा, लेकिन ये लोग देते हैं क्योंकि इनके फिक्र होते हैं, पैसे आपके पास होते हैं, आपके पैसे हड़पने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। एक आदमी को जो उनका लीडर होता है, हम उसको गिदड़ बोलते हैं क्योंकि वो यानी गिदड़ की तरह छुप के वार करता है और आपके जमा पूंजी को आपसे महरूम कर लेता है, मकारी से। ये लूमड़ी के बच्चे हैं। आप लोग सोच समझ कर फैसला कीजिए, इनके ऊपर कभी एतमाद ना कीजिए क्योंकि इनको तो फ्री अकाउंट मिल जाता है। फिर अगर आप उनको बताते हैं कि मेरे $1500 $200 गायब हो गए, ये लोग लेके गए, फिर वो आपको दिखाते हैं कि मेरे तो $5000 मोबाइल आपके सामने करके गायब हो चुके हैं और इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है, तो उनको तो फ्री के मिले हुए होते हैं ना, फिर वो जाके दूसरी कंपनी में लूटमार शुरू कर जाता है। जैसे कि B4U को लोगों ने स्मार्ट ग्रुप में भी लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, कैशवर्थ में भी लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, अल हयात में भी कर दिया, अल-सफा में भी कर दिया, ये जो दूसरे कितने भी कंपनियां आ चुकी हैं उनमें भी कर रहे हैं। तो उनका मेन मकसद क्या है? आपको अपने पैसे से महरूम करना। तो हुदारा होश के ना हो ले, अक्ल को संभाल के और होश को लेकर आप लोग यानी अपने पैसे संभाल के रखिए। सॉरी मेरी ज़बान पिसल गई। अपने पैसे संभाल के रखिए, अपने अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, इन ज़ालिमों को पैसे कभी मत दीजिएगा। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि जो भी आपको कहता है कि फलाने कंपनी में आपके पैसे जो पुराने हैं लूटे हुए वो आपको मिल जाएंगे, आपको उधर भी लूटा जाएगा, तो ना दे, इन ज़ालिमों को पैसे ना दे। आपके जो पैसे हैं उनके लिए कानूनी जंग लड़े। एक इख्तिजाज की ज़रूरत है, एक इत्तेहाद की ज़रूरत है। और ये जो हमारे मैसेजेस होते हैं, आप इस तरह के मैसेजेस खुद भी रिकॉर्ड करें, हमारे मैसेजेस को भी ग्रुपों में फैलाएं ताकि लोगों को में शऊर आ जाए और इन ज़ालिमों से बच जाए। दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई जावेद खान।